Hi everyone, welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter 13 amines. Class 12 का chapter है ये. Today we will continue the methods of preparation of amines. In this session we will discuss the various methods of preparation of amines. Number first method is by reduction of the nitro compound. सबसे पहला मेथड हम करेंगे नाइट्रो कंपाउंड से कोई सा भी हो चाहे एल्काइल या एराइल, उसका हम रिडक्शन करेंगे और उससे बनाएंगे. रिडक्शन के लिए आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट. देन 3H2 आपको यूज करने पड़ेंगे. यहां से ये 2 ऑक्सीजन एंड 4H will combine together to form twice of H2O, and 2 hydrogen atom will attach on the nitrogen atom to form the primary amine. Clear? One more method can be taken by for the reduction of the nitro compounds. क्या कर सकते हैं आप? SN metal ले सकते हैं with HCl, concentrate HCl यूज करना है, और आप यूज कर सकते हो iron metal with concentrate HCl. Then 6 nitrogen hydrogen we will get 4H and 2 oxygen again to form combine together to form twice of H2O, and 2 hydrogen atom will combine with the nitrogen to form the primary amine. 2 examples are there. R को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय द CH3 ग्रुप, CH3NO2 plus 6H SnHCl सिलेक्शन कराएंगे वही मेथड. 4H and 2 oxygen twice of H2O, and the main compound is CH3NH2. Same procedure repeated with the ethyl group. Then we will get the CH3CH2NH2. Similarly नाइट्रो कंपाउंड लेंगे. नाइट्रो कंपाउंड में एरोमेटिक ले रहा हूं की बार में. नाइट्रोबेंजीन है हमारा कंपाउंड, SnHCl से कराओ. 4H and 2 oxygen same twice of H2O, and 2 hydrogen combined to the nitrogen atom to form the aniline. This is the aromatic amine. Therefore this method can be used for the preparation of aliphatic amines or aromatic amines. Clear? But primary amines, keep it in mind. Second point is by Hoffman ammonolysis method. Hoffman ammonolysis method भी हम यूज कर सकते हैं. ये मेथड आपने alkyl halides में भी किया था, बिल्कुल सेम मेथड है. In this method, ammonia reacts with the alkyl halide. Then 1H, 1Cl, HCl is removed, and CH3 group combined with the NH2 group. Therefore, primary amine बना है. अब इसी में हम कंट्रीब्यूशन में कर सकते हैं. 1H, 1Cl, HCl will form, and CH3 whole twice NH will form. क्योंकि एक H replace हो गया by the methyl group. Therefore, we will get the secondary amine. This process again continue. 1H, 1Cl will remove, and the CH3 whole thrice N will form. That is the tertiary amine. ये आपका tertiary amine बन गया. Now again CH3Cl can combine. अब की बार कोई replacement नहीं होगा. Can combine with the CH3 whole thrice N means 3 degree amines. Then we will get the tertiary amine. ये आपका tertiary क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, एमीन्स नहीं बोलते बेसिकली. अब की बार नाइट्रोजन पे ध्यान दो. लास्ट में एक लॉन पेयर बचा था, रिप्लेसमेंट के लिए कोई हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है, तो बस ये CH3Cl इसके साथ कंबाइन हो सकता है. CH3 होल 4 NCl. क्लियर? अब इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सुनो. इस मेथड में आपको प्राइमरी अमीन भी मिल रहा है, सेकेंडरी अमीन भी मिल रहा है, टर्शियरी अमीन भी मिल रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल रहा है. यही इस मेथड का डिसएडवांटेज है. By this method we are having the mixture of these type of amines, और इस मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल होता है. फिर this is the disadvantage of this method. However, if you want to the primary amines, then we can use large excess of ammonia. अमोनिया को हम large excess में यूज करें तो वो CH3Cl सिलेक्शन करके प्राइमरी amines बना सकते हैं. सारा का सारा प्राइमरी amine बनेगा. सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी वगैरह कुछ भी नहीं बनते. अब इस मेथड में फिर बस आपको प्राइमरी अमीन मिलेंगे, ध्यान रखना है. थर्ड मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ द साइनाइड्स. साइनाइड्स का आप रिडक्शन करा सकते हो. रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज करो. हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एमलगम विद इथेनॉल. तो उससे क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा. 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ अटैच हो जाएंगे. ट्रिपल बॉन्ड पे हमेशा एडिशन होता है, तो एडिशन के बाद यहाँ पर आपका बन जाएगा CH2NH2 मींस 1 डिग्री एमीन. इसी का एक एग्जांपल लेते हैं. इस R ग्रुप को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय द CH3 ग्रुप. देन इट विल बी CH3Cl, 4H कंबाइन करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, CH3CH2NH2 विल फॉर्म. दैट इज द प्राइमरी एमीन. अब आपको क्या करना है, मैंने एक एग्जांपल और चेंज किया वहीं पर. C6H5 ले लिया CH3 ग्रुप की बजाय, तो C6H5Cl में भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, 4 हाइड्रोजन आइटम
hydrogen atoms are taken, 2 attached on the carbon atom, 2 attached on the nitrogen atom. We are getting the C6H5CH2NH2, again primary amine, which is called as the benzyl amine. नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स होते हैं बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया डेरिवेटिव्स, उसमें से OH ग्रुप हटा देते हैं, NH2 ग्रुप लगा देते हैं, तो देयरफॉर वी गेट द एमाइड्स। इनको एसिड एमाइड भी बोल देते हैं या सिंपल एमाइड्स भी बोल सकते हो। अंडरस्टूड है कि एमाइड जब भी बनेगा तो आपका उसी से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका भी मैं रिडक्शन करा सकता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएं, 4H की रिक्वायरमेंट होगी, 4H यूज करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O, और 2H जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, RCH2NH2 विल फॉर्म, इट इज द प्राइमरी एमीन। एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, R को रिप्लेस करूंगा सिंपल बाय CH3 ग्रुप, तो मेरा कंपाउंड हो गया CH3CONH2, इसको हम बोलते हैं एसिटाइमाइड या IUPAC में आप बोल सकते हो इथेनामाइड। इसका रिडक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2 and 2 hydrogen atom combined with the carbon atom, we get the primary amine। ये आपका बन गया प्राइमरी amine। सिमिलरली सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे विद फिनाइल ग्रुप। दिस कंपाउंड इज C6H5CONH2, इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। 4H से कंबाइन करेंगे, वही रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2 and 2 hydrogen atom goes to the carbon atom, C6H5CH2NH2 will form। नेक्स्ट मेथड इज बाय हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन मेथड। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड में रिएक्शन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। प्राइमरी एमीन्स को बनाने का मेथड है और बेसिकली इसमें कार्बन का नंबर डिक्रीज होता है, इसलिए मैं इसको डिग्रेडेशन मेथड भी बोल रहा हूँ। डिग्रेड करना, कम कर देना। इन दिस मेथड एमाइड्स आर यूज्ड, रिएक्ट विद द ब्रोमीन एंड एल्कोहलिक KOH। एमाइड को रिएक्ट करवाना है ब्रोमीन से और एल्कोहलिक KOH से कराना है, क्लियर। Then we get the primary amines RNH2 having 1 carbon less than the original amide। जो भी ओरिजिनल एमाइड था उससे 1 कार्बन कम हो जाएगा और प्राइमरी अमीन आपका बन जाता है, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं डिग्रेडेशन मेथड। कंप्लीट नेम इज हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन समझो कैसे होगी, 2K और 2Br, ये आपका बन रहा है ट्वाइस ऑफ KBr। 2K 1 CO group and 2 oxygen atom from this to form K2CO3। 4H बच रहे हैं अभी भी और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, therefore twice of H2 will form। मींस आप कह सकते हो इस मेथड में प्राइमरी एमीन बनते हैं, कार्बन का नंबर 1 कम हो जाता है देन द ओरिजिनल एमाइड। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो एमाइड दिख रहा है ना, आफ्टर हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन ये CO ग्रुप बीच में से खत्म हो जाता है, RNH2 बनता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर R को रिप्लेस कर रहा हूँ बाय CH3 ग्रुप, तो ये आपका कंपाउंड हो गया CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, देन 2KBr बनेगा ही बनेगा, K2CO3 ट्वाइस H2O। और यहाँ पर ध्यान दो मैं क्या रहा था आपको, ये CO ग्रुप खत्म हो जाएगा, फाइनली आपका जो कंपाउंड बनता है CH3NH2 बनता है। सेम प्रोसीजर रिपीटेड विद द बेंजामाइड। मैंने R ग्रुप को की बार रिप्लेस कर दिया C6H5 से, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C6H5NH2। बाकी सब कुछ सेम है, ट्वाइस KBr भी सेम, K2CO3 भी सेम, ट्वाइस ऑफ H2O भी सेम। नाउ द लास्ट मेथड इज गैब्रियस सैलिमाइड सिंथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, अच्छे से लर्न भी करेंगे इसको। इस चैप्टर में 3 नेम रिएक्शंस हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड जो भी हमने की, गैब्रियस सैलिमाइड जो हम करेंगे, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी कार्बोनिल रिएक्शन, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इन दिस मेथड थैलियमाइड इज यूज्ड। ये कंपाउंड कहलाता है आपका थैलियमाइड, reacts with the alcoholic KOH, then 1H 1OH combine together to form H2। ये आपका H2 हो जाता है, and potassium thaliamide is formed। This compound is known as potassium thaliamide, PHTHALIMIDE। This is known as potassium thaliamide, which further reacts with the alkyl halide। alkyl halide रिएक्शन कराते हैं, जैसे C2H5Br है, ये K और ये Br, ये रिमूव कर दो और आपका बन जाता है फिर यहाँ पर N-ethyl thaliamide, PHTHALIMIDE। Now this compound is hydrolyzed with the dilute HCl। मैंने हाइड्रोलियम लिख दिया, मींस डाइल्यूट कोई भी एसिड यूज करा हुआ है, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और यहां से ब्रेक होगा, 1H 1OH 1H एंड 1OH। तो
तो ये आपका बनता है COOH यानी कि थैलिक एसिड, और एक आपका बनता है राइट साइड में जो बन रहा है C6H5NH2। दिस इज द प्राइमरी एमीन। बाय दिस मेथड एनी प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक एंड प्राइमरी एमीन may be formed, but one limitation is there. Aromatic primary amines cannot be formed by this method. Suppose aniline की हम बात कर रहे हैं, aniline cannot be prepared by this method. ये NCERT का आपका एक क्वेश्चन भी है। Why it cannot be prepared? Because जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने यूज किया था इस मेथड में एल्काइल हैलाइड। यदि मैं एराइल अमीन बनाने की कोशिश करूंगा यानी कि एनिलीन बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा C6H5Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन। एंड वी ऑल नो दैट ब्रोमोबेंजीन और एराइल हैलाइड आर द लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कंपाउंड इसके साथ में रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो फिर आप हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? दैट्स व्हाई एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कई बार एनिलीन कह देते हैं, कई बार कह देते हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, मतलब एनिलीन की ही बात हो रही है। व्हाई इट इज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड? बिकॉज एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। प्रिपरेशंस के सारे मेथड हमने क्लियर कर दिए। आप इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।